Okay, I hope my PPT is visible. Yes, sir. Okay, so we will look into more detail about the CSS. So this is the course objective. We have to understand what is website development and internet. Okay, and in this chapter 3, unit 3, we'll discuss about website using JavaScript. We have to build dynamic website. And these are some of the texts. Okay, so we know what is CSS. This thing we have already discussed, but we'll see it in more detail. What is a CSS syntax? If you can see, a CSS syntax consists of a selector and a set of declarations. Now, selector means to which HTML element we wish to apply the style, and declaration consists of two things, that is a property and a value. For example, if you want color equal to blue and font size equal to 12 pixel. Okay, so color is a property and blue is a value. So this is a CSS property and this is a CSS value, and we put it inside a curly braces to indicate that it is a set. Okay, so we can have more than one declaration. So this is the selector, this is the declaration. Okay, I hope this is clear. Yes, sir. This thing we have already discussed. So yesterday we discussed there are 5 ways in which we can select. We can select the element to which we wish to apply the style. So they are simple selector, combinator selectors, pseudo class selectors, pseudo element selectors, and then attribute selectors. So simple selector we have done is that if we wish to apply a style to all elements, we simply name that element. For example, if I say P here, so all the paragraphs in my HTML document will be colored as red and they will have a text alignment of center. Okay, is it clear? Yes, sir. Then there is an ID selector. Now suppose I don't want all elements to be formatted with a given style. No, if I want a particular element only, not all, then I can make use of ID selector. In ID selector, what we have to do, we have to use a hash and we have to give some name. So when we use this hash and some name, it indicates that it is an ID selector. So whichever attribute, whichever HTML element with this ID value will be formatted using this style. So if you see the below text, it says a paragraph and it has an ID of para 1. So what is the para 1? Para 1 is the ID for this paragraph. So this hello world will be colored red and its text will be aligned at center. Okay. So this Yes. is what we mean by when we use a hash. So hash means this is a ID selector. So only that HTML element which has an ID of para 1 will be selected, will be formatted using this style. And third is the class selector. Now suppose what we want is instead of all the HTML elements, we want a set of elements to be formatted using this style. So we can create a class. So how do we create a class? Using the dot. Using the Dot. dot. So dot के बाद हम जो भी नाम लिखेंगे वो एक क्लास बन जाएगी. For example, in this case, it is a center. Okay. Yes, So sir. this is a class now. इसको मुझे यूज कैसे करना है? P class is equal to center. तो जब मैं इसकी क्लास सेंटर लिखूंगा तो जो भी सेंटर के स्टाइल्स होंगे, जो भी उसकी डिक्लेरेशन होंगी, वो सब इस पैराग्राफ को अप्लाई हो जाएंगी. ओके. Yes, sir. सो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. सो एलिमेंट सेलेक्टर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी एलिमेंट्स को वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा. जो आईडी सिलेक्टर में हमें हैश यूज करना है नाम के आगे, और जिस एलिमेंट को हमने वो स्टाइल अप्लाई करना है उसको वो आईडी लिख देना है. और तीसरा क्या है, क्लास सेलेक्टर अगर एक से ज्यादा करने हैं बट सबको नहीं करना. ओके, एक से ज्यादा को करना है बट सबको नहीं करना, देन वी कैन क्रिएट ए क्लास, और जो भी उस क्लास को अपने एट्रीब्यूट्स में स्पेसिफाई करेगा उन सब में वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा. Okay, we had an example for this also, so I will come to that. So just a minute, let me close some other. Okay, तो अब देखिए इसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है. इज दिस विजिबल? Yes, sir. ये एटम का वो दिख रहा है ना डेटा. Yes, sir.
Okay, so what is this P style? पैराग्राफ. पैराग्राफ को अप्लाई कर रहे हैं हम, और हैश लास्ट क्या है? Okay, just a minute. Let me full screen snip this. So अगर आप ध्यान से देखो इसको, ये जो है, so I will use this. So if you see this thing, this is what? First one, this is पैराग्राफ. element selector. This is एलिमेंट element सेलेक्टर. selector. So मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल पैराग्राफ्स का कलर रेड कर रहा हूँ, टेक्स्ट लाइन क्या कर रहा हूँ, सेंटर कर रहा हूँ. एंड व्हाट इज दिस? आईडी सेलेक्टर. दिस इज आईडी सेलेक्टर. मैं कह रहा हूँ कि उस पैराग्राफ का कलर क्या कर दो, ग्रीन कर दो, जिसका आईडी क्या है, लास्ट. लास्ट. और दिस ब्लू, लास्ट. दिस इज क्लास सेलेक्टर. सो मैं क्या कह रहा हूँ, जिस भी पैराग्राफ की क्लास क्या है, ब्लू है, उन सबको कलर क्या कर दो, ब्लू कर दो. सो आई हैव ऑल द 3 सेलेक्टर इन दिस. और ये जो है, ये मेरा HTML पेज है. ठीक है, HTML पेज है, उसमें मैंने एक पैराग्राफ बनाया है P. ये 2 पैराग्राफ बनाए जिनकी क्लास मैंने क्या की है, ब्लू की है, और 2 पैराग्राफ किए हैं जिनके मैंने आईडी क्या लिखा है, लास्ट. ओके, इफ आई ओपन दिस थिंग, so now you can see this. so first क्या है, सिंपल ID. P है, उसमें कौन सा स्टाइल अप्लाई हुआ, एलिमेंट सेलेक्टर. तो अगर आप ध्यान से देखें, एलिमेंट सेलेक्टर में कलर क्या था आपका, रेड. रेड. ओके, और जिनमें आपके आईडी था लास्ट, उनका कलर क्या था, ग्रीन. यस और नो? ये देखिए, ये जो था ना लास्ट, जिनमें आईडी क्या है, लास्ट है, उनमें कलर क्या है, ग्रीन. ग्रीन. तो इन दोनों का, ये जो लास्ट है, इनका कलर ग्रीन हो गया. और जिनकी क्लास थी ब्लू, उनका कलर क्या हो गया, ब्लू. यस और नो? यस सर. Okay, so this way we can apply different style, different colors. So ये सब जो है, we can always do using selectors. Okay, so we close this, we will move on to the second one. Okay, combinator selector. Okay, combinator selectors क्या है, if we want to apply style on the basis of some combination. Now suppose I want कि किसी पैराग्राफ को स्टाइल अप्लाई हो, but that paragraph must be inside a div. Okay, या फिर that paragraph is a sibling of a div, या फिर वो पैराग्राफ जो है उसका adjacent sibling हो. Okay, we'll discuss all this. What is the descendant? Descendant क्या होता है? सर सिलेक्ट्स ऑल पैराग्राफ्स. नहीं, डिसेंडेंट में जनरल पूछ रहा हूँ. अगर ए पेरेंट है, ए क्या है, पेरेंट है, बी क्या है, चाइल्ड है, तो बी डिसेंडेंट है कि ए डिसेंडेंट है? एंसेस्टर क्या होते हैं, एंसेस्टर. हेलो, सर ए यहाँ पे एंसेस्टर है. हाँ, ए यहाँ पे एंसेस्टर, जो हम कहते हैं ना पूर्वज हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट को हम कहते हैं एंसेस्टर्स, है ना. यस सर. और डिसेंडेंट क्या होते हैं, जो उनके चिल्ड्रन हो. सो ए क्या है, एंसेस्टर है, बी क्या है, चिल्ड्रन है. इवन अगर बी का भी एक चाइल्ड है ना, सी, तो सी भी क्या है, डिसेंडेंट है. ए का वो क्या है, डिसेंडेंट है. ठीक है ना. और ए जो है, बी और सी का क्या है, एंसेस्टर है. कैन वी से दिस? यस सर. यस और नो? यस सर. यस. सो डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, मैं चाहता हूं कि डिव के बाद लिखूं पी. इसका क्या मतलब हुआ, सभी पी एलिमेंट्स को ढूंढो जो किसके अंदर है, div के अंदर है. Got it? So you have to find all those paragraphs which are inside the div element. Is it clear? यस सर. ये जो डिसेंडेंट है ना, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि ये इसका चाइल्ड हो. ऐसा भी हो सकता है, ये div है, div के अंदर क्या है, बोल्ड टैग है,
बोल्ड के अंदर पैराग्राफ है। तो आप देखो जो पैराग्राफ जो है वो डिव के अंदर नहीं है। डिव के अंदर क्या है आपका, बोल्ड है, बोल्ड के अंदर आपका पैराग्राफ है, इजंट इट? बट ये जो पी है ये बी डिव का भी डिसेंडेंट है, यस और नो? यस सर। अब दूसरा है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर क्या कहता है? सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट वेयर पेरेंट इज ए डिव। वेयर, पेरेंट इज डिव। ये नहीं कि ग्रैंड पेरेंट डिव हो या उसका पेरेंट डिव हो, पेरेंट डिव होना चाहिए। ओके, सो इस स्टाइल में अगर डिव के अंदर पी है, चाहे कितने मर्जी लेवल पे है, वो नहीं मैटर करता। सो अगर मैं स्पेस के बाद लिखूंगा पी, तो वो पी डिव के अंदर होना चाहिए, चाहे जितने मर्जी लेवल के अंदर हो, वो मैटर नहीं करेगा। बट जब मैं क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन लिखूंगा। जब मैं क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन, इट मीन्स इसका इमीडिएट चाइल्ड होना चाहिए, इसके चिल्ड्रन का चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए। ओके, इसको हम यस सर। प्रैक्टिस में भी देखेंगे एक बारी। अब देखिए ये है एडजेसेंट सिबलिंग। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है? मतलब ये आपका डिव है, इसके बाद आपका डिव खत्म हो रहा है, उसके बाद आपका पी आना चाहिए। सेलेक्ट्स ऑल पी एलिमेंट विच आर प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर डिव एलिमेंट। इमीडिएटली मतलब नेक्स्ट, इन नेक्स्ट। दोनों के बीच में कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, और एक है यस। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। इसमें आप क्या यूज करते हो, ये टिल्ड यूज करते हो। ओके, इससे क्या होता है कि कोई भी सिबलिंग हो, जरूरी नहीं है कि इसके बाद होना चाहिए, चाहे कितने मर्जी लेवल पे हो, बट इसी के सेम लेवल पे होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टिल्ड साइन। ओके, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। सो इफ यू सी दिस, मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है कि डिव और टिल्ड पी। डिव और टिल्ड पी, इसका क्या मतलब हो गया, कोई भी सिबलिंग होना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। कोई, है ना, कोई भी सिबलिंग होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो दिस इज द आर्किटेक्चर, ये है ना आपका आर्किटेक्चर। पहले आपका पी का सिबलिंग कौन है, डिव है। डिव का सिबलिंग H1 है, H1 का सिबलिंग पी है। मतलब ये सारे जो है सेम लेवल पे हैं, तो मतलब ये सारे क्या है आपस में, सिबलिंग। सिबलिंग्स हैं, ठीक है ना? कौन कौन से, पी डिव H1 पी। ओके, सो इसको मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो कलर किसका चेंज हुआ, पी। लास्ट वाले का। किसका चेंज हुआ, लास्ट। लास्ट वाले का क्यों हुआ, फर्स्ट वाले का क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट वाले का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने लिखा था किसका सिबलिंग होना चाहिए, डिव का। डिव का मतलब डिव के बाद आना चाहिए। सो डिव के बाद पी कौन सा आ रहा है, डिव के बाद जो है ये पी आ रहा है ना? सो तभी इसका कलर क्या हुआ, रेड हुआ, और इसकी टेक्स्ट लाइन क्या हुआ, सेंटर हुआ। क्योंकि वाई, बिकॉज दिस इज ए सिबलिंग ऑफ दिस डिव। ओके, ये जो अंदर पैराग्राफ थे इनका कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये किसी भी डिव के सिबलिंग नहीं है, ये डिव के चाइल्ड हैं। ये डिव के चाइल्ड हैं, ग्रैंड चाइल्ड हैं, बट सिबलिंग नहीं है। सिबलिंग क्या होता है, सेम लेवल पे। हाँ? तो जो सिबलिंग सेम होता है लेवल पे। ब्रदर और सिस्टर, जैसे आपके भाई बहन होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, सिबलिंग। यस और नो? यस सर। भाई सिबलिंग यस वर्ड नहीं सर। सुना? सिबलिंग, सिबलिंग होती है ना, सिबलिंग मीनिंग। तो सिबलिंग क्या होता है, ईच ऑफ द टू चिल्ड्रन ऑफ योर ऑफस्प्रिंग। ओके, जिनके कॉमन पेरेंट हो उनको क्या हम क्या कहते हैं, सिबलिंग कहते हैं। सो अगर आप देखो, दिस इज माय लास्ट पैराग्राफ, इसका चेंज हो गया। ओके, सो अगर हम देखें, इसकी जगह में अगर प्लस लूंगा तो क्या होगा, अगर टिल्ड की जगह में क्या लूंगा, प्लस लिखूंगा तो क्या होगा? अगर आपको याद हो तो क्या होता था, प्लस में क्या होता है, इमीडिएट सिबलिंग का स्टाइल अप्लाई होगा, सबको नहीं होगा। तो इफ आई रीलोड दिस, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या हुआ,
Yes, can you see the browser window? Yes, sir. क्या हुआ? जो आपका लास्ट पैराग्राफ पहले क्या था, रेड था ना? रेड था, यस सर, वो अपनी जगह पे। रेड भी था, सेंटर भी था, वो अब क्या हो गया? लेफ्ट हो गया और और ब्लैक। ब्लैक हो गया, है ना? हो गया, यस सर। क्योंकि इसको ये स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। ये स्टाइल क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि ये इसका इमीडिएट सिबलिंग नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या है? H1 है। अगर मैं H1 को रिमूव कर देता हूँ, H1 को रिमूव करके मैं इस पेज को दोबारा लोड करता हूँ, सो अब क्या हुआ? सेंट्रल लाइन हो गया लास्ट सेंटर पैराग्राफ। लाइन भी हो गया, रेड भी हो गया। इसका मतलब अब इस पे वो स्टाइल अप्लाई हो गया। हमने लिखा है ना ऊपर, कलर इज इक्वल टू रेड, टेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू सेंटर। ओके, चलो कुछ और देखते हैं। अब मैंने क्या कहा था आपको, एक ग्रेटर देन साइन होता है। ग्रेटर देन साइन से क्या होता है? सर बस चाइल्ड सिर्फ फर्स्ट सिलेक्ट। चाइल्ड का कलर चेंज होगा, ठीक है ना? और डिव के अंदर होना चाहिए, डिव के अंदर फर्स्ट चाइल्ड का कलर चेंज होगा। ओके, तो इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो किसका चेंज हुआ? थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ को अगर हम देखें तो क्या है? डिव के अंदर पी में है, इसका चाइल्ड है। जो डिव के अंदर बी के अंदर पी है, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इसका इमीडिएट चाइल्ड नहीं है, नहीं। है ना? वो इसका ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब है ना, जैसे होता है ना, ग्रैंड चाइल्ड। सो डिव के अंदर पी है, पी के अंदर पी है। अगर आप चाहते हो कि सभी का हो तो आपको क्या लिखना है? ये ग्रेटर देन नहीं लिखना है। ग्रेटर देन से क्या होता है? सिर्फ इमीडिएट चाइल्ड का कलर चेंज होता है। तो अगर इनके बीच में स्पेस लिखूंगा और इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो अब क्या हुआ? सेकंड पैराग्राफ हो गया। सेकंड का भी हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? कि ये जो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर है, अगर उसके बीच में मैं स्पेस दूंगा तो सभी चिल्ड्रंस का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आगे बढ़े। यस सर। ये तो मैंने कल पढ़ा दिया था, आज हमें नेक्स्ट करना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीडो क्लास सेलेक्टर्स। सीडो क्लास सेलेक्टर क्या करते हैं? हम एक स्पेशल स्टेट एलिमेंट की डिफाइन करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जब कोई उस पर माउस लेके जाए तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, या फिर जब किसी लिंक को कोई क्लिक कर देता है, ओके, जब किसी लिंक को कोई कलर चेंज करता है तो उसका कलर चेंज होना चाहिए। ओके, या फिर जब उस पर कोई फोकस आता है। ओके, सो आई वांट सम, आपको दिखते हैं ना कई साइट्स होती हैं बहुत सुंदर दिखती हैं, उन पे माउस लेके जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है, उनका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। सो दोज आर थिंग्स आर पॉसिबल यूजिंग सीडो क्लास सेलेक्टर्स। सो अगर आप देखो सूडो क्लास सेलेक्टर पे क्या लिखा है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक्टिव। एक्टिव मतलब सिलेक्ट द एक्टिव लिंक। मैं चाहता हूं कि देखो ए है ना, अगर मैं ए के आगे एक्टिव लिखूंगा तो इससे क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाए। इसका मतलब कि जब उस पे यूजर ने किसी लिंक को सिलेक्ट किया है, ठीक है, या फिर चेक्ड, हमने वो देखे थे ना चेक बॉक्सेस। यस सर। सो अगर इनपुट चेक्ड है तो क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि कुछ कलर चेंज होना चाहिए। ओके, या फिर वो डिसेबल्ड है तो कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जानी चाहिए, या वो फील्ड एम्प्टी है तो कुछ और हो जाना चाहिए। ओके, या फिर फर्स्ट चाइल्ड है, क्या है? फर्स्ट चाइल्ड है तो कुछ और स्टाइल अप्लाई हो जाना चाहिए, या फर्स्ट ऑफ किसी पर्टिकुलर टाइप का है, या जब उस पर कुछ फोकस आए। सो दीज आर सम ऑफ द सीडो क्लास सेलेक्टर्स। ओके, तो ये बेसिकली एक एलिमेंट पे नहीं आते हैं, एलिमेंट के कुछ प्रॉपर सेलेक्टर पे आते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ओके, जस्ट मैं अभी किसको करता हूँ? फर्स्ट चाइल्ड को करता हूँ। ओके, इसमें ही हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके मैं एक न्यू फाइल में करता हूँ। I will paste it in a new file. So this is pseudo class dot html. Okay, pseudo underscore class. Okay, so अगर आपको ध्यान रखना है कि div की किस प्रॉपर्टी पे रखना है मुझे, सपोज इसकी मुझे रखना है फर्स्ट चाइल्ड पे रखना है, कि जो भी इसका फर्स्ट चाइल्ड होगा उसका कलर क्या हो जाना चाहिए? जब इसका फर्स्ट चाइल्ड है उसका कलर क्या हो जाना चाहिए? रेड होना चाहिए और सेंटर लाइन हो जाना चाहिए। गॉट इट? लेट्स सी।
Just a minute. So wait a minute. Okay. So we have to use a single, not double. Okay. Firstly, हमने किया color is equal to red. Okay. So save. Just a minute. Okay. So ये क्या इसने क्या किया? This is first child. This is my this first paragraph. This is my second paragraph. Okay. So just a minute. Okay. So बताइए कैसे हुआ ये? What is first child मतलब? P पैराग्राफ जब क्या है, जब भी ये फर्स्ट चाइल्ड है तो इसका कलर क्या हो जाना चाहिए? रेड। और रेड। अलाइनमेंट क्या जानी चाहिए? सेंटर। तो अगर ये देखो, ये जो है ना P, ये जो है इसका फर्स्ट चाइल्ड है किसका? बॉडी का। और ये जो P है ये क्या है? फर्स्ट चाइल्ड किसका है? डिव का। सो दैट्स व्हाई क्या हुआ बताइए? दैट्स व्हाई हुआ क्या कि ये दोनों का कलर क्या हो गया? रेड हो गया। और इन दोनों का सेंटर में आ गया। ओके। सो इसमें हम बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि फोकस है, चेक है, हॉवर है। तो देयर आर वेरियस अदर क्लास सेलेक्टर जिनको हम अप्लाई करके इनको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ओके, शैल वी मूव नेक्स्ट? यस सर। ओके, जैसे हमने क्लास सेलेक्टर बनाया ऐसे हमने क्या कर सकते हैं? सूडो क्लास सेलेक्टर बनाया, ऐसे सूडो एलिमेंट सेलेक्टर भी है। ओके, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर भी है। A pseudo element selector is used to style specific parts of an element. Okay? जैसे कि फर्स्ट लेटर को हम करना चाहते हैं या फर्स्ट लाइन को करना चाहते हैं, किसी एलिमेंट की फर्स्ट लेटर को या लाइन को करना चाहते हैं, या कि हम चाहते हैं कि उससे पहले कुछ आए या उसके बाद में कुछ आए। ओके, विल सी दिस। इसका आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको क्या यूज करना है बताइए? इसके पहले आपको डबल कोट यूज करने हैं। क्या यूज करने हैं? डबल कोट सर यूज करना है। ओके, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस एलिमेंट से पहले कुछ आना चाहिए या इसके बाद में कुछ आना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपका फर्स्ट लेटर होना पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, फर्स्ट लाइन होनी चाहिए या सिलेक्शन होनी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू यूजिंग दिस। सो लेट मी सी इफ वी कैन डू दिस। सो हम क्या करते हैं? सूडो एलिमेंट का एक बनाते हैं। इसको भी मैं कंट्रोल कंट्रोल सी करता हूँ। फाइल में न्यू फाइल, इसको हम सेव करेंगे सूडो एलिमेंट्स। ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? सेव कर रहा हूँ। इसमें मुझे क्या करना है? डबल कोट यूज करना है। मैं चाहता हूं कि हर किसी पैराग्राफ के बाद में क्या आना चाहिए? कलर रेड। नहीं, कंटेंट आना चाहिए से just a minute, somebody joined. Okay, Basir is trying to join. Okay, okay, so I think I have allowed him, so he will be joining. Anyhow, so where were we? So हमने क्या किया? कंटेंट में हमने क्या लिखा कि जब भी कोई हो उसके बाद न्यू आ जाना चाहिए। ठीक है, हर पैराग्राफ के बाद क्या आ जाना चाहिए? न्यू आ जाना चाहिए। विल सी दिस। अब देखिए क्या हो गया। व्हाट इज दिस? सर पैराग्राफ के बाद न्यू आ रहा है हर किसी पैराग्राफ के बाद क्या आ गया? सर। न्यू न्यू आ गया। ओके, और यस हम क्या कर सकते हैं? इमेज भी डाल सकते हैं। ओके,
हम क्या कर सकते हैं, कोई इमेज ऐसे आता ना, वो आजकल इमेज आती है. So let me do some fancy thing. Say what we want is we want say okay, we'll try कि क्या ये न्यू ऊपर आ सकता है. No, I don't think this is formatted. ये HTML को नहीं लेगा. इमेज हम इसमें डाल सकते हैं. So 1 minute, let me check the syntax. Okay, so this is what I was looking for. Okay, so this is what we have to do. तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज को भी इसमें डाल सकते हैं. सपोज मैंने क्या रखी, एक कोई इमेज रख ले रहा हूँ, इमेज डॉट जेपीजे. सो मैं क्या करता हूँ, टाइमिंग एक MS पेंट में मैं एक इमेज बनाता हूँ. ओके, आई विल छोटी सी इमेज बनाएंगे हम, ज़्यादा बड़ी नहीं, ताकि वो हर उसके बाद आ जाए. फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, न्यू. इसका कलर मैं क्या कर रहा हूँ, रेड. ओके, आई विल कीप इट एज दिस. ओके, इसको सिंपली बनाता हूँ. इसका नाम हम क्या रखेंगे, इमेज डॉट जेपीजे. ठीक है ना, इसका नाम. तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, मैंने सेव कर दिया. तो इधर भी मैंने ऑलरेडी इमेज डॉट जेपीजे रखा हुआ है. सो व्हेन आई ओपन दिस थिंग, व्हेन आई ओपन दिस थिंग इन द सीडो एलिमेंट्स, तो आप देखिए क्या हो गया. यस, इज इट विजिबल. यस सर, विजिबल सर. हाँ, क्या हो गया अब, सर ये आगे जो पे इमेज न्यू. है हर किसी के बाद आ गई है ना. यस सो सर. दिस इज व्हाट वी मीन बाय आफ्टर. या आप बिफोर चाहते हैं, बिफोर आ जाएगा, या आप चाहते हैं कि फर्स्ट लेटर में कुछ आ जाए, या उसका फर्स्ट लाइन आ जाए. सो these all thing we can do using pseudo element selectors. So let's move on to the last. Let's move on to the last selection, that is the attribute selector. So what we want, sometimes we want that कोई एक एलिमेंट जिसकी एक प्रॉपर एक एट्रीब्यूट है, वही एलिमेंट पे हमने स्टाइल अप्लाई करना है. So it is possible to style HTML that have specific attributes or target or attribute values. ठीक है, the attribute selector is used to select element with the specific attributes. The following example select all a element with a target attribute. Okay, ये क्या चाहता है कि जिसका टारगेट क्या हो, ब्लैंक हो, उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, येलो हो जाना चाहिए. So let's see this. So we'll go to form. इसको भी हम एक बार देख लेते हैं. So we'll go to, हम अपना फॉर्म हमने बनाया था ना, अगर आपको याद हो. So there was, फाइल में ओपन करते हैं. So there was something called as form. Okay, form 1. So form 1 में अगर आप देखें, somebody is trying to join or somebody is left. Okay, no issues. So if you try to open this form 1, तो अगर आप देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना. यस और नो. मैं चाहता हूं कि जो भी इनपुट है जिनका टाइप क्या है, टेक्स्ट है, उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, से पाउडर ब्लू. ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, तो आई विल कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, फाइल में जाके न्यू फाइल, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ विद डिफरेंट नेम. दिस इज एट्रीब्यूट सेलेक्टर. ठीक है, .htm.
तो एट्रीब्यूट सेक्टर में आपको क्या करना है, अगर आपको याद हो, वी हैव टू टाइप स्टाइल, ओके, और स्टाइल में मुझे क्या लिखना है, इनपुट, ठीक है, और मुझे कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके, सो आई हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉलोड बाय उसका टाइप क्या है जिसको हमें अप्लाई करना, सो आई वांट टू से टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, उस पे ये होना चाहिए, स्टाइल अप्लाई होना चाहिए, और क्या हो जाना चाहिए, कलर इक्वल टू रेड, बैकग्राउंड माइनस कलर इज इक्वल टू येलो, ठीक है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। सो अब क्या हो गया, सर बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। हाँ बैकग्राउंड कलर येलो हो गया ना इनका, यस सर। और इनका टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। सो रेड ये हो गया सर। सबका नहीं हुआ, ये सबका नहीं हुआ, क्योंकि ये भी इनपुट एलिमेंट है, ये भी इनपुट है ना, ये सभी इनपुट एलिमेंट है, इफ यू कैन सी दिस, ये सभी इनपुट एलिमेंट है, जैसे रेडियो है, ये भी है, ये भी है, बट हुआ किसका, जिसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट, इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट। दिस इज व्हाट वी मीन बाय एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। सो हम इनको भी फॉर्मेट कर सकते हैं यूजिंग दिस। ओके, लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। आज हम 2-3 और भी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज CSS की। दिस इज जस्ट अ लिस्ट, ये मोस्टली हमने स्टडी की है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो सबसे पहले हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। सो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, व्हाट इज बैकग्राउंड कलर, सर येलो। नहीं, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, जैसे ये जो आपकी स्लाइड है, बैकग्राउंड कलर क्या है, सर जो बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्लाइड, इस कलर का बैकग्राउंड कलर क्या है, ये जो स्लाइड है ना, इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है, सर ये विजिबल ही नहीं है सर। आपको स्लाइड नहीं दिख रही है, नो सर, तो मेरी ज्वाइन करते हैं। हाँ, सो मैंने बंद करके मैं दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ। Is it visible? Is the PPT visible? Yes, sir, it's visible, sir. यस Okay. सर। So background color क्या है इस PPT का? लाइट ग्रे। हाँ white sort of है ना, मतलब ग्रे भी कह सकते हो, white भी है, शायद white ही है ना। राइट। बच्चे ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं इस PPT का कलर पूछ रहा हूँ, ये जो PPT है ना, सर वाइट, सर वाइट। white है ना, PPT का कलर क्या है, white कलर है बैकग्राउंड, और इसका फोर कलर क्या है, या कलर क्या है, जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ उसका कलर क्या है, उसका कलर है Sir, red and blue. ब्लैक है, ब्लू ब्लैक है रेड। ना, रेड है ना, यस सर। यस और नो। सो बैकग्राउंड कलर क्या होता यस है, सर। जो उस एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर है, और कलर क्या है, जो उसमें आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसका कलर क्या टेक्स्ट सर। है। ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन कैसे हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, लेफ्ट राइट हो राइट सकता है, सेंटर। सेंटर हो सकता है, जस्टिफाइड हो सकता है। लेफ्ट अलाइन का क्या मतलब है कि वो लेफ्ट की तरफ अलाइन होगा, राइट अलाइन का क्या मतलब है, वो राइट की तरफ अलाइन राइट होगा, साइड। सेंटर वाला क्या होगा, वो सेंटर अलाइन है, और जस्टिफाइड क्या है, वो सबको बराबर कर देगा विड्थ उनकी चेंज करके। एक एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है कि आपने राइट टू लेफ्ट लिखना है कि लेफ्ट टू राइट लिखना है। जैसे इंग्लिश जो है वो हम क्या लिखते हैं, सर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेफ्ट टू राइट। उर्दू है, राइट टू अरबिक है, लेफ्ट। हाँ वो हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, है ना। यस सर। देन देयर इज अनदर प्रॉपर्टी कॉल्ड वर्टिकल अलाइन, मतलब वो अलाइंड सर ऊपर होना चाहिए, वर्टिकली। नीचे होना वर्टिकली चाहिए, कैसे अलाइन करना। या सेंटर पे होना चाहिए। ओके, सो टॉप, मिडिल एंड बॉटम, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेक्स्ट डेकोरेशन। डेकोरेशन क्या हो गया, उसको सुंदर कैसे बनाना, व्हाट इज ओवरलाइन, ये एक्स है ना, इसके ऊपर अंडरलाइन, दिस इज लाइन थ्रू। ओवरलाइन मतलब उसके ऊपर लाइन, अंडरलाइन मतलब उसके नीचे लाइन, लाइन थ्रू मतलब उसके सेंटर में से लाइन जाएगी। ओके, सो ये भी कभी आप डेकोरेशन कर सकते हो। देन देयर इज ट्रांसफॉर्म, उसको अपर केस में करना है, लोअर केस।
ओके, लोअर केस में करना है या उसको कैपिटलाइज करना है? अपर केस क्या हो गया? जैसे सभी बड़ा, लोअर केस सर हो जी गया सभी छोटा, कैपिटलाइज क्या हो गया? कैपिटल फर्स्ट लेटर। लेटर बड़ा, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं ना, वो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे वो इसमें हम पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, तो हम लिखते हैं दिस इज ए पैराग्राफ। हम जगह छोड़ते हैं ना पैराग्राफ स्टार्ट होने पे, यस सर। उसको हम क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। सो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई जो पैराग्राफ है वो लिखने से पहले हम टैब दबाते हैं ना नॉर्मली, तो जी टैब सर। की जगह हम इधर क्या लिखते हैं? हम टेक्स्ट इंडेंट, इंडेंटेशन जिसको हम कहते हैं। देन देयर इज लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब अगर आप चाहते हो सी इधर आए, एस इधर आए, एस इधर आए, तो आप इनके बीच में स्पेसिंग दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज लेटर स्पेसिंग। स्पेसिंग। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लाइन हाइट। जैसे मैंने कहा ना, इन दोनों के बीच में अगर आप चाहते हो कि डिस्टेंस हो, जैसे है ना ये बैकग्राउंड कलर और कलर, इनके बीच में आप ज्यादा डिस्टेंस देना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे? लाइन हाइट। इसको अगर 1 यस दोगे, 1.5 दोगे, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लाइन हाइट मतलब ऐसे, तो पहला आपका इधर आएगा, दूसरा आपका इधर आएगा। देन देयर यस इज वर्ड स्पेसिंग। अगर वर्ड्स के बीच में, जैसे सीएसएस और टेक्स्ट है, इन दोनों के बीच में आप चाहते हो कि ज्यादा क्या है, ज्यादा स्पेस आए, तो आप क्या लिखोगे? वर्ड स्पेसिंग। देन देयर इज यस समथिंग कॉल्ड एज वाइट स्पेस। नो रैप मतलब एक स्पेस और दूसरी स्पेस को इकट्ठा ना करे, उनको अलग अलग ट्रीट करे, तो आप क्या लिखोगे? वाइट स्पेस कॉलन नो रैप। ओके ओके, नो नोबडी जॉइन, समबडी जॉइन। ओके, एंड लास्ट इज योर टेक्स्ट शेडो। आप चाहते हो कि टेक्स्ट क्या हो? टेक्स्ट की सर। शेडो। सो फॉर एग्जांपल यू वांट कि उसकी फ्रंट वर्टिकल शेडो, हॉरिजॉन्टल शेडो दो दो पिक्सल की हो, तो वी कैन डू दिस। सो इसको थोड़ा सा एक बारी प्रैक्टिस में देख लेते हैं, देन विल वाइंड अप। ओके, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, फाइल में हम न्यू करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया, बट आप लोग लेट भी आए हैं आज, सो इसको हम पी ले लेते हैं, क्योंकि हमने पी को ही अप्लाई करना है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सो इसको क्या लिखेंगे? सी एस एस टेक्स्ट। ओके, तो ये फॉर्म हमें इस पे नहीं चाहिए, सो वी वोंट टेक एनी फॉर्म। हम सिंपली क्या लेंगे? पी लेंगे। पी में सम, आई एम कॉपिंग सम टेक्स्ट से, आई वांट टू कॉपी सम टेक्स्ट। में कहीं से टेक्स्ट उठाता हूँ, तो आई विल गो टू द साइट एंड वी गो टू, ये टेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ? कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सम टेक्स्ट, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मैंने सेव किया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? देखने की कोशिश करता हूँ। सो ये आपका आ गया टेक्स्ट, यस और नो? यस सर। ये दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। ओके, अब हम क्या करते हैं? इस पे वो सारे चीजें अप्लाई करते हैं। सो कलर इसका मैं चाहता हूँ ब्लू, और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? कलर होना चाहिए पाउडर ब्लू। ये तो आपको पता है ऑलरेडी। देन अलाइन भी आपको पता है ना? टेक्स्ट माइनस अलाइन, इसको हम क्या करेंगे? सेंटर होना चाहिए, सेंटर भी पता है आपको। उसके बाद देन थी हमारी लाइन हाइट। लाइन हाइट कितनी होनी चाहिए? से मैं चाहता हूँ होनी चाहिए 2 पिक्सल। सेव करें इसको, अब इसको रीलोड करें। सो लाइन हाइट ने क्या कर दिया? इट हैज टू बी 3। थोड़ी सी बड़ा कर देते हैं उसको। अब देखिए यार, थोड़ा सुंदर दिख रहा है, यस और नो? बच्चों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहली बात तो ये। यस सर, नजर आ रहे सर। ओके, सो इसको थोड़ा सा ना, लाइन हाइट को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। आई वांट इट टू बी 24, क्योंकि 16 का ये डिफॉल्ट होता है। सो अब मैंने बढ़ा दिया, अब ये बढ़ गया। टेक्स्ट भी थोड़ा सा बढ़ गया है ना? सो अलाइन में क्या करता हूँ? इसको लेफ्ट करते हैं। एंड देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज टेक्स्ट इंडेंट। तो मैं चाहता हूँ कि ये
48 पिक्सल जो है थोड़ी सी इसकी इंडेंटेशन हो। तो बताइए क्या हुआ, इंडेंटेशन से क्या हुआ? यस प्लीज, पहले बताइए विजिबल है, आपको दिख रहा है ये? सर पहली ये आपको यस सर वेब पेज दिख रहा है ना? सो ये जो हाँ सर हाँ ये जो है ना बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, पहले इसके आगे क्या आ गई? स्पेस आ गई है ना, आगी ना? ये जो पैराग्राफ है यस इसके सर पहले स्पेस आ गई, इसको हम क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। ओके, देन देयर वाज लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। पहले हम वर्ड स्पेसिंग को देख लेते हैं। सो मैं चाहता हूं कि वर्ड स्पेसिंग जो है आपकी कितनी आ जाए, से 24 पिक्सल। वर्ड के बीच में स्पेस आनी चाहिए थोड़ी सी, है ना? लेट्स सी इससे कोई फर्क पड़ता है? हो गया, फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? इज इट विजिबल? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको Sir, this is visible, sir. ओके, देयर मे बी सम डिले ऑन नो नेटवर्क। सर नहीं दिख रहा अभी भी? सर अब दिख रहा है ओके, सो क्या हुआ? सर सर अब दिख रहा है सर स्पेस आ गई वर्ड वर्ड्स के बीच में स्पेस आ गई। ओके, तो देयर वाज समथिंग मोर, लेटर लेटर स्पेसिंग। ना सपोज लेटर स्पेसिंग में चाहता हूँ कि 18 पिक्सल हो जाए, ये भी हम कर सकते हैं। इफ आई रीलोड दिस, अब क्या हो गया? इज इट विजिबल? लेटर्स के बीच है ना, लेटर के यस बीच सर में भी स्पेसिंग आ गई। सो दीज आर सम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग काइंड ऑफ स्टाइल्स। सो एक चीज और थी इसमें, टेक्स्ट शेडो में चाहता हूँ 5 पिक्सल, 10 पिक्सल। सो आई वांट अभी मैं इसको पूरा को रिमूव करके इनको थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर दिखे। सो सेव इट। तो अब क्या हो गया बताइए? ये इसकी शेडो भी आ रही है, कैन यू सी? कैन यू सी द शेडो? Yes, sir. हाँ, तो ये चीजें हम इसको अगर साथ में रखोगे आप, सपोज आई वांट इट टू बी 5, सो 2 पिक्सल, तो ये प्रॉपर आपको एज ए शेडो दिखेगी। अब दिख रही है ना शेडो टाइप? although it's not very clear, we can also specify, इसको यूज करके हम थोड़ा सा सुंदर बना सकते हैं। अब आ गया ना, थोड़ी शेडो आ रही है ना उसकी। ओके, यस और नो? यस सर ओके, सो यू कैन स्पेसिफाई योर अटेंडेंस नाउ। आप सभी अपनी अटेंडेंस करिए, टाइमिंग। आई एम शेयरिंग यू द लिंक। I am presentation. I am stopping it. Okay, so this is attendance link. You can submit your link attendance now. So and I'm stop.